all have written your exam well. So we are going to start with the second semester. So we will start with the second semester first chapter, that will be chapter number 8, who is heavier. Okay, now by the name you can understand who is heavier. In this chapter we are going to study about what? Weight, कि कौन कितना भारी है. Yes. So if you remember, we have studied about centimeter and meter. What was that used for? Centimeter और meter use होता था height के लिए. Yes, that was used for height. Now here for the measurement of the weight, we will use the kilogram and gram. Okay, क्या use करेंगे? Gram and kilogram. Okay, now we will study in detail what is gram and kilogram. Okay, so here we will see identifying gram and kilogram. Okay, now we will study in detail what is gram and what is kilogram. So see the first line, the smaller unit of weight is gram. Okay, जो smaller unit होता है यानी कि जो कम होता है जिसका weight, उसको हम बोलते हैं ग्राम. उसको measure करते हैं हम ग्राम में. ठीक है, the smaller unit of weight is gram. Okay, which is expressed as G in short. Okay, ग्राम को हम short में क्या लिख सकते हैं? G. Okay, which is expressed, उसको हम लोग as G भी लिख सकते हैं, like 14G, 15G. This is all known as gram. Okay, that is 14 gram, 15 gram. ये हमारा रिप्रेजेंट कर दिया हमने ग्राम में. ओके, स्मॉलर यूनिट जो हल्का वेट हुआ उसको हम कैसे लिखेंगे? ग्राम में लिखेंगे. और उसको किस फॉर्म में लिखा जाता है? शॉर्ट फॉर्म में G. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट वन. द बिगर यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम. ओके, क्या? जो बड़ा वेट हो गया, हैवी वेट हो गया, उसको हम लोग किस में लिखेंगे? किलोग्राम में लिखेंगे. ओके, द बिगर यूनिट of weight is kilogram. Okay, bigger unit क्या हो जाएगा? यानी कि जो heaviest weight है उसको हम लोग किस में measure करेंगे? किलोग्राम में. Okay, which is expressed as kg in short. Okay, हम इसको किलोग्राम में हमको short form में क्या लिखेंगे हम लोग? kg. Okay, kg. Like you will say 100 kg or 15 kg. Yes, that is 100 kilogram and 15 kilogram. This is all known as kilogram. Okay, bigger unit को हम लोग क्या बोलेंगे? किस में measure करेंगे? किलोग्राम. And smaller unit, ठीक है, smaller unit यानी हल्का weight, जैसे weight of a coin, weight of a chalk. Okay, वो सब को हम लोग लिखेंगे ग्राम. Okay, and the heaviest weight जैसे weight of a car, weight of a animal, any animal. Okay, उस सब का weight हम लोग किस में measure करेंगे? किलोग्राम, that is kg. Okay, तो हमने जैसे सेंटीमीटर एंड मीटर में देखा था that meter was measured for bigger unit and centimeter was measured for smaller unit. Yes, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1 kilogram is equals to 1000 gram. Okay, 1 kilogram is equals to 1000 gram. ये हमारा इक्वेशन आपको याद रखना है and this will be used for your all the sums that we will do in this chapter. Okay, इसका क्या मतलब हुआ? that 1000 ग्राम जब होता है यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स हम लोग जब ग्राम का यूज करेंगे 1000 टाइम्स, तो वो जाके इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम. ओके, सो हम बोल सकते हैं कि 1 किलोग्राम को हम 1000 ग्राम भी बोल सकते हैं या 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम भी बोल सकते हैं. ओके, नाउ आई विल शो यू द मेटल्स. ओके, मेटल्स जो यूज होते हैं वेट को मेजर करने के लिए ग्राम और किलोग्राम के. Okay, so we will see with the picture and we will understand. Okay, now let's see the different types of measuring weights. Okay, now you can see here identifying metal weights. Okay, there are different metal weights for gram and kilogram. अब this metal weights you have seen in the market. अगर आप मम्मी पापा के साथ गए होगे मार्केट में for buying the vegetables, fruits, तो आपने वहाँ पे देखा होगा that persons that the sellers are using this type of measuring weights, है ना? ऐसे आपको this will be a 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg till 20 kg the measuring weights are there. Okay, अब different types of metal weights. This is the metal, ये metal का होता है. Okay, this the weighting machine, this is of
दिस हम लोग मेजरिंग के लिए जो यूज किया जाता है वो मेटल का हुआ इसमें होता है। ओके, नाउ ग्राम का एंड किलोग्राम का अलग अलग मेजरिंग वेट होता है। ग्राम का यू कैन सी हियर दिस इज द स्मॉल वंस। ओके, 1 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक यहाँ पे आपको मेजरिंग वेट दिया हुआ है। एंड जो किलोग्राम का होता है वो हैवी होता है, वो बड़ा होता है। यू कैन सी हियर दिस 500 ग्राम एंड 1 kg, यू कैन सी द डिफरेंस, है ना, डिफरेंस इन साइज है। Yes, so the weight is also different. You can see different types of metal weights for gram and metal weights for kilogram. Okay, kilogram का start होता है from 1 kg to 20 kg and metal weight start होता है from 1 gram to 500 gram. Okay, so this is just for your knowledge. Okay, now we will see some measuring weighing machines. Okay, that is used. Now as you can see here different types of weighing machines are here. Okay, जिससे हम लोग अलग अलग टाइप से मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं, वो उसको हम बोलते हैं वेइंग मशीन्स। ओके, सो यू कैन सी फर्स्ट वन इज अ कॉमन बैलेंस स्केल। कॉमन बैलेंस स्केल आप नॉर्मली आप कोई भी सब्जी वाले के पास आप जाओगे तो यू वुड हैव सीन देयर कि यहाँ पे एक साइड में वो लोग सब्जी रखते हैं और एक साइड में जो हम लोग ने मेटल वेट्स देखे, यस, वो रख के इसको मेजर करते हैं। सो दिस इज द कॉमन बैलेंस स्केल जो नॉर्मली यूज किया जाता है। नाउ second is the counterbalance scale. Now this is the counterbalance scale. Now this is most of used in a ration store. Okay, ration store में most of use करता है। Nowadays this in the vegetable store also they are using this. यहाँ पे आप weight रखेंगे and यहाँ पे आप आपका सामान रखेंगे and this you can see like a meter. Okay, ये यहाँ पे मीटर में आपके अलग अलग नंबर्स दिए होते हैं, वेटिंग के मेजरमेंट दिए होते हैं, वो आपको वहाँ पे show करेगा with an arrow. You can see the arrow. Yes, with the help of that it will show that this product or this thing is of this much weight. Okay, now the third one is analytical weighing machine. Analytical weighing machine is this. Okay, ये most of आपको ज्वेलरी शॉप में देखने को मिलेगा, ज्वेलरी को मेजर करने के लिए। यहाँ पे हम लोग मोस्ट ऑफ ग्राम के थिंग्स रखते हैं। सेम एज द कॉमन बैलेंस जैसा होता है वैसा ही यहाँ पे होता है। एक साइड में आप कुछ सामान को रखोगे एंड नेक्स्ट यू विल कीप दैट कोई भी वेट वहां पे रखोगे, लाइक 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम और हाउ मच दैट इज। ठीक है, यहाँ पे रखोगे तो यू कैन सी हियर ये जो आपको नीचे स्केल दिख रहा है, यस, यहाँ पे वो मेजरिंग के नंबर्स दिए गए होते हैं एंड दिस एरो शोज दैट। ठीक है, ये जो एरो है वो दिखाता है कि ये इतने ग्राम का है या उतने ग्राम का है, दिस विल शो दैट। ओके, now come to the next one, fourth one, that is spring balance scale. Okay, this is here you can see in the picture spring balance scale. Now what is spring balance scale? For measuring the heavy objects. Okay, कोई भी जैसे आप कुछ like sack, you are sack means जो बोरी होती है उसको measure कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपने देखा होगा आपके घर के बाहर में जब आप कुछ भंगार देते हो, yes, he might have brought that. ठीक है, उससे वो पेपर ऐसे रखता है और उससे वो ऊपर खींच के यस इसको वो ऊपर ऐसे पकड़ता है। यस, तो ये जो वेट है वो वेट इस मेजर में यहाँ पे दिया हुआ ना 0, 5, 15, 20, यस, यहाँ से वो देख के उसको मेजर करता है। ये हुक में वो सामान को हुक कर देगा, इन इसको डाल देगा एंड ही विल पिक अप लाइक दिस एंड ही विल गेट द मेजरमेंट इन दैट स्केल। ओके, यहाँ पे जो दिया हुआ है मेजरिंग का वहां पे वो देख सकता है। ओके, नाउ कम टू द फिफ्थ वन, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल? आप अगर डीमार्ट गए होगे, बिग बाजार गए होगे, एनी मॉल यू हैव गॉन, तो आपने वहां पे देखा होगा जब आप वहां पे कोई राशन लेते हो, है ना, दाल चावल कुछ ऐसे लेते होगे, तो वहां पे आपने देखा होगा दिस इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, आपने वहां पे देखा होगा। यहाँ पे हम जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो यहाँ पे दिख रहा है वहां पे आप कोई भी सामान रखोगे एंड इन दिस मीटर, ओके, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है देखो 00 दिया है, यस, तो वहां पे वो कितने वेट का है वो वहां पे शो करता है। सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, जिसमें हम लोग को वेइंग मेटल के वेट्स रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी उसको रखने की जरूरत नहीं है, दैट इट विल शो इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब ऑटोमेटिकली वो नंबर दिखा देगा कि ये सामान इतने वेट का है। यस, सो दिस विल बी ऑपरेटेड विद इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन। ओके,
अदर देन दैट ये जो 1 2 3 4 है इसके लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती, बट दिस इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन नीड्स द इलेक्ट्रिसिटी. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ देन इट विल नॉट वर्क. ओके, now come to the sixth one, that is laboratory weighing scale. Now this you will see, this is the laboratory weighing scale. Now यहाँ पे जो ये मीटर दिया हुआ है, यस यहाँ पे वो मेजरमेंट दिखाता है कि ये इतने वेट का है. आप ये जो ऊपर देख रहे हो दिस प्लेटफॉर्म, इन दिस टॉप यू कीप द प्रोडक्ट्स. ओके, ये आप इन लैबोरेटरी भी यूज होता है, आप देखोगे तो ये वहाँ पे ज्वेलरी शॉप में भी यूज होता है. ना मैनी वे इट कैन बी यूज्ड. ओके, लैबोरेटरी में इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग दैट एनी कोई भी लोग केमिकल्स जो भी है वो अगर मेजर करना है कि इस केमिकल में इतना ये डालने का है, so for that it is used, or in a different ways of laboratory it is used, but in other ways like in jewelry shop or any other things also it can be used. So this is the laboratory weighing scale. Okay, so this was the different weighing machines that are used for measuring weights. Okay, this is just for your knowledge. In detail you will study in a further classes. Okay, so just write down the names in your notebook. Okay, now so here we have just got the brief introduction of the chapter and some basic things that you have to learn and you have to pay attention. Okay, so all these things you have to write down in your notebook in a neat handwriting. You can make a new notebook. If you have made 100 pages books, you can make new notebook. If you have made 200 pages book, you can continue with that book only by folding one page. जैसे हम आपको फर्स्ट सेकंड सेम में सिखाते हैं कि पेज को फोल्ड करो, वहाँ पे सेकंड सेमेस्टर लिखो, वैसे भी आप कर सकते हो. और else you can make a new notebook. Okay, but maintain the book neatly. Okay, thank you.